नमस्कार, द रिलेटेबल शो में आपका स्वागत है। आज है एम एस धोनी का बर्थडे और इसलिए हम रिएक्ट करने जा रहे हैं एम एस धोनी के ट्रिब्यूट वीडियो पे जो आईसीसी ने बनाया था। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और याद करते हैं उन अच्छे लम्हों को जब धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला करते थे। चलिए शुरू करते हैं। Dhoni is the most destructive batsman. Indeed. He changed the face of Indian cricket. I think Dhoni is the biggest legend Indian cricket's ever had. So Dhoni, I love you, Dhoni. Love you too. Obviously a fellow wicketkeeper, he's been an idol of mine growing up. Mr. Cool. I love his persona on the field. Looks very calm and in control when he bats. He's got lightning fast hands behind the stumps. He loves to take the game deep, and I think his unique style has been a great ambassador for the game. I'm a huge MS Dhoni fan. Same here. One of the greats of the game. Phenomenal wicketkeeper. Stood up to the stumps. I don't think anyone will ever be as good as him. MS is very cool, man. I love him. Nothing's new to him. He knows his game inside out, and he's done it year after year after year. And obviously his batting speaks for itself. He knows exactly what he wants to do out there in the middle, and he's won us so many games. He's a legend of the game, we all know that, and he's doing a tremendous job for us, and hopefully he can continue. Dhoni is the best captain I have played under. Sachin Tendulkar. Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties start in the dressing room, and it's an Indian captain who's been absolutely magnificent. What you see from the outside is very different from how things happen within a person. His greatest skill is just maintain his composure in the toughest of moments, and that's why he's so good. That's why he's able to make such good decisions under pressure, because he's always calm, he's always composed, and he allows himself to get into that space where he can take that important call. So there's so much to learn from him. When I walked into the team, he was my captain. He's always going to be my captain in my head. For me, when I came into the Indian team in 2016, he was the captain, so that was a good relief for me that whenever in doubt, we run up to him, we ask him questions, because he's a calming influence in the team. He helps us quite a lot. We all just love having him around and seeing him have so much fun with his cricket now, and he just enjoys every minute of being on the field, and our understanding's been brilliant over the years. Because when I walked into the team, the reason why he gave me chances, because he believed that I play with the right intention and I would do anything for the team together, and that's why the partnership is so special. And even off the field, he understands me fully, I understand him completely, and I'm always up for listening to his advice on the field, and it helps immensely to have someone so experienced around. वाओ, लिटरली वाओ। मतलब लिटरली यार, एम एस धोनी के बारे में क्या कहा जा सकता है। एम एस धोनी के बारे में जब भी आप याद करो, देखो उनके पूरे करियर को, तो वो मैग्निफिसेंट है, फैबुलस। मतलब क्या क्या कर दिया उन्होंने, क्या बेंचमार्क सेट कर दिया उन्होंने हर कुछ के लिए। विकेट कीपिंग से लेके क्या स्टंपिंग स्पीड देखा है, मतलब पलक झपने। मतलब उनका शायद रिकॉर्ड है 0.9 सेकेंड का, जब उन्होंने 0.9 सेकेंड के अंदर स्टंप कर दिया था, तो ये तो रिकॉर्ड है। बैटिंग में तो खैर मैं बता रहा हूँ, जब इनिशियली 2006-7-4 में उन्होंने डेब्यू किया, ये 5-6 में 7 तक तो ऐसा खेलते थे कि मतलब फाड़ देते थे सबका। मतलब ऋषभ पंत वाला हाल था, मतलब जो भी ऋषभ पंत का उससे भी 2 गुना आगे ही होंगे जिस हिसाब से वो खेलते थे उस टाइम पे। तो धोनी, और यहाँ तक एज ए कैप्टन, तो धोनी के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे। बीच में हमने पढ़ा भी कि सचिन तेंदुलकर सेज दैट ही इज़ द बेस्ट कैप्टन सचिन सर प्लेड अंडर। सो आई फील इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सचिन सर ने गांगुली को भी खेलते देखा है, मतलब गांगुली के अंडर भी खेला और राहुल द्रविड़ के अंदर भी खेला। इनफैक्ट ही वॉज ऑल्सो द कैप्टन, आई गेस ही ऑल्सो प्लेड अंडर अजहरुद्दीन। येस, तो इन तीनों कैप्टन, बड़े बड़े कैप्टन्स के अंडर खेलने के बाद अगर वो ऐसे बोल रहे कि मैं धोनी
को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इसलिए भी शायद क्योंकि धोनी ने ऑफकोर्स वो वर्ल्ड कप जिताया और इसलिए वो बहुत बड़ा मोमेंट बन जाता है। लेकिन अगर एज एन स्ट्रेटेजिस्ट देखो ना, तो मैं एक एनेक्डोट शेयर करता हूँ। सुरेश रैना के साथ एक इंटरव्यू हो रहा था, ठीक है, तो उसमें वो बता रहा है कि कैसे MS धोनी एक रात पहले ही अगले दिन का जो मैच होता है ना, उसके बारे में प्लान करके बैठ जाते हैं। वो सोच लेते कि भाई ये होगा, मैं ऐसे ऐसे करूँगा। ही लिटरली मैनिफेस्ट कि अगले दिन कैसे खेलना है मुझे, क्या अगर ऐसा चलेगा तो मैं ऐसा करूँगा। और सॉरी 2-3 प्लान उनके हेड में ऑलरेडी होता है। तो वो इस लेवल के रणनीतिकार, इस लेवल के स्ट्रेटेजिस्ट है। तो कैप्टेंसी में तो शायद उनका कोई तोड़ ही नहीं है। और विकेट कीपिंग में भी मेरे को नहीं लगता। और बैटिंग, हाँ मैं मानता हूँ कि लास्ट के कुछ ईयर्स में उनकी बैटिंग बहुत अच्छी नहीं रही थी, बट आई गेस वो इवॉल्व कर गए। इनिशियली वो बहुत मार के खेलते थे, फिर उन्होंने देखा कि कैसे गेम को डीप तक ले जाके लास्ट में मारना है, और वो उन्होंने अपनी गेम को इवॉल्व किया यार। जो स्पेशली एक बहुत बड़ी खासियत उनमें ये भी थी कि वो समझते थे कब क्या करना है, कब गियर कौन सा डालना है, कब 2 नंबर पे चलना है, कब 5 पे चलना है। तो आई गेस ये बहुत बड़ा अपने आप में एक जो होता है रियलाइजेशन है, एक लर्निंग है जो उन्होंने खेला है। और मेरे को लगता है क्रिकेट के इतिहास का शायद सबसे बड़े प्लेयर्स में से अगर गिनेंगे तो उनको एक गिना जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर को गॉड बोलते हैं, तो मेरे को लगता है आने वाले समय में उनको भी सचिन से शायद एक स्टेप नीचे ही आका जा सकता है, उससे कम नहीं। तो कैप्टन तो आते जाते रहेंगे, ऐसे प्लेयर्स तो आते जाते रहेंगे, मगर धोनी जैसा प्लेयर इंडियन टीम के लिए शायद दशकों में एक बार आता है। तो आई विश हिम हैप्पीएस्ट बर्थडे, आई विश हिम लॉन्ग लाइफ एंड मे हिज लाइफ बिकम ग्रेट। एंड आई फील कि वो IPL और खेले और हमें और ऑप्शंस दे, क्योंकि आज भी मैं TV तभी ऑन करता हूँ जब धोनी बैटिंग कर रहे होते हैं। तो आई विश हिम हैप्पीएस्ट बर्थडे। जय हिंद।